Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 19 SSP Allahabad Board, and it was NCC special entry. The date of the SSP was from 16 to 20th December and the topic was China increasing influence in the world. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate and geopolitics. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you about the other details of that SSP, right? जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 19 एस एस पी एन सी से स्पेशल एंट्री थी एंड डेट ऑफ द एस एस पी वॉज 16 टू 20 दिसंबर. अभी थोड़ा रिपोर्टिंग डिटेल्स की बात कर लेते हैं. देखो टोटल रिपोर्टिंग वॉज 180, डॉक्यूमेंट आउट हुए हैं 65, स्क्रीन इन हुए हैं 45, OR के सेट्स जो पूछे गए थे दैट वाज 74 to 75. If we talk about PP and DT picture, the picture was based on a place surrounded by people standing in the circle. In the center area, two persons are standing, one male and the female, and they're looking towards a material placed at the center. The material appears to be a body, right? So this was the description of our PP and DT. Let's talk about the GD topics. देखो दो GD टॉपिक्स थे. पहला, चाइना increasing influence in the world. What factors should be used to decrease it? Is it the military strength? Is it the international alliance or by startup? ये ही टॉपिक जो है आज हमने इस वीडियो में कवर किया है. दूसरा जो जीडी टॉपिक पूछा गया था दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स गिव यूथ सेटिस्फैक्शन. इज इट रिलेशनशिप, इज इट करियर और इज इट फाइनेंस. The lecture topic that was asked in the board was R&D of India, Fit India campaign, electric vehicle, my favorite sports, health condition in India, social media, drone, international yoga day. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दूसरा जीडी टॉपिक कवर करूं प्लस इनमें से कोई लेक्चर टॉपिक कवर करूं यूट्यूब पे, टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, देखो टैग पिक्चर्स जो थी वो थी. पहली पिक्चर was based on many people are looking at a man lying on the road and from the head side it appears that blood is flowing. दूसरी जो टैट की पिक्चर थी it was a man is moving in a river pool with his hand in his pocket. He's wearing a normal shirt and a pant. The scene appears to be of a village area. तीसरी पिक्चर was based on a mountain scene, right, where two persons are moving upward using a rope. One person is helping the other holding his hand and they're carrying a bag. Fourth picture was based on a black type background that looked like a mountain area. One hut is present and a person is moving upward wearing a full coat. Next picture was based on a stable table with 4 to 5 cups placed on it. A newspaper is in the background and setting looks like a home. Next picture was based on two persons are sitting on the road and taking help by holding hands. Beside them, one cycle, one scooter are lying on the road. Many people are working with the tools in the village-like area. Rocks are present and people are digging soil from that area. Next picture was based on a man is standing on the rope bridge with the river beneath it. Mountains are on the both side and people are present on the boat. The next picture that was based on a male is going towards a female and female is standing in front of a gate. Next picture was based on a person is moving upward using a ladder with the help of a rope. Next was based on a canal is present in a deserted area and a person is moving nearby. So these were the details about the tag pictures जो पूछे गए थे, right? नेक्स्ट आपके कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. देखो PIQ में 10th परसेंटेज जिस बच्चे ने बताया है उसकी लो थी. सो पूछा गया विच सब्जेक्ट डिड यू चूज आफ्टर 10th एंड वाई. CIQ1 और CIQ2 से मिक्स्ड क्वेश्चन थे विद सम एडिशनल पॉइंट्स सच एज हाउ यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद योर ब्रदर. Next was the what adventure activities have you done? Mention one strength and one weakness. Why are you not joining the corporate sector? Do you have a girlfriend? What type of camps you have attended? What irritates you? Right? Have you appeared in any of the competitive examination, whether it's a central one or state one? Tell me about your family financial income. What sports do you play and what are your achievements? Tell me two general studies question. So that was the interview question. So guys, that was all. देखो हमारा जो है पूरा एसएसपी का बैच चल रहा है जिसमें हम पीपीएनडीटी, जीडी, लेक्चरेट, टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी कवर कर रहे हैं. अगर आप में से किसी को वो बैच ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. देखो द टॉपिक इज
China increasing influence in the world. What factors should be used to decrease it? Is it the military strength, global strategic alliance, by startup? देखो, सीधा डायरेक्टली टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ चाइना के बारे में और चाइना के पॉलिसीज के बारे में, फिर हम अपने लीड के हिसाब से कवर करने वाले हैं टॉपिक को। देखो, चाइना की अगर इन्फ्लुएंस की बात करें, इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी वजह है नियरली $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस। चाइना दुनिया को बहुत ज़्यादा बेचता है लेकिन खुद कम खरीदता है। मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, इसका रिजल्ट वर्ल्ड की बड़ी फैक्ट्री बनी है चाइना में। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ग्रीन टेक में डोमिनेंस है चाइना का। फॉरेन एक्सचेंज का ह्यूज रिजर्व है और पैसा डायरेक्टली कन्वर्ट होता है मिलिट्री पावर, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस में, राइट। अगर हम बात करें चाइना के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड ग्लोबल इम्बैलेंसेस की, आप यहाँ पे देखिए ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंसेस की, चाइना का मॉडल एक्सपोर्ट हैवी है लेकिन डोमेस्टिक कंजप्शन स्लो है। इस वजह से ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस, डेवलपिंग कंट्रीज चाइना पे डिपेंड हो गए हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन वीक पड़ रहे हैं और जब डिपेंडेंस बढ़ती है इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए चाइना का इन्फ्लुएंस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियोपॉलिटिकल भी हो गया है। अगर हम बात करें चाइना की, चाइना कुछ ऐसी जियोपॉलिटिक एजर्टिवनेस को अपनाता है। इनकी ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। ये यूजुअली यूज करते हैं अपने बॉर्डर को एनहांस करने के लिए, राइट। इनका इसको अगर रेफर किया जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। सलामी स्लाइसिंग एक मिलिट्री टर्म है, इसका मतलब है एक ही बार बड़ा अटैक नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में एरिया गेन करना। चाइना ये स्ट्रैटेजी यूज करता हुआ आया है। साउथ चाइना आइलैंड्स की बात करें तो वहाँ देखिए, हिमालयाज डोकलाम की बात करें वहाँ देखिए, हमारे साथ उनकी एलएसी में टेंशन है, उसका रीजन भी ये है, हर स्टेप वॉर का लेवल का नहीं होता, इंटरनेशनल रिएक्शन उससे कम होता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेंज हो जाती है। ये स्ट्रैटेजी डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये स्लो एग्रेशन होता है। दूसरा चाइना अपनाता है चाइनीज डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। देखो, चाइना एक पावरफुल, या फिर मैं अगर आपको बात करूं तो चाइना एक और वेरी पावरफुल वेपन यूज करता है जिसको कहते हैं डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, पोर्ट्स, हाईवेज, एयरपोर्ट बनाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कंट्री लोन रीपे नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट क्या होता है, चाइना पोर्ट्स पे कंट्रोल ले लेता है, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस मिलता है। क्लासिक एग्जाम्पल है आपके पास श्रीलंका का हम्बन बतौता पोर्ट। इसलिए चाइना मिलिट्री एक्सेस, पॉलिटिकल लैवरेज दोनों गेन करता है। अब हम चाइना की 5 फिंगर ऑफ तिब्बत स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखो, इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इंडिया को स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। तिब्बत को चाइना क्या कंसीडर करता है, पाम कंसीडर करता है। और 5 फिंगर्स को क्या कंसीडर करता है, देखो उन्होंने 5 फिंगर्स को कैसे माना हुआ है, एक मेटाफर है ये पाम प्लस फिंगर वाला। 5 फिंगर्स में एक लद्दाख है, राइट, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर चाइना इन एरियाज में कंट्रोल बढ़ाता है, इंडिया स्ट्रैटेजिकली सराउंड हो जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर थ्रेट में आ जाता है। इसलिए चाइना का तिब्बत पॉलिसी इंडिया के सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, देखो चाइना इंडियन ओशन रीजन में पोर्ट्स का नेटवर्क बना रहा है। एग्जाम्पल, ग्वादर पाकिस्तान में, हम्बन बतौता श्रीलंका में, चितोंगोंग बांग्लादेश में, दिजुबूती अफ्रीका में। इसका एम है क्या एक्चुअली, इसका एम है सी रूट्स पे कंट्रोल, इंडिया को मेरीटाइम प्रेशर में रखना। इससे चाइना को ट्रेड सिक्योरिटी, नेवल रीच मिलती रहेगी, राइट। अभी यहाँ पे देखिए कि कैसे इन्होंने पोर्ट्स बना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को स्ट्रॉन्ग किया। आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब हम अपने लीड्स पे आ जाते हैं, जो 3 लीड्स है। सबसे पहली लीड है मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिसको हम कह सकते हैं डिफेंस नेसेसिटी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिलिट्री स्ट्रेंथ एक नेसेसिटी नहीं, एक सॉल्यूशन है। मतलब वॉर सॉल्यूशन नहीं है पर डेटरेंस सॉल्यूशन है। चाइना का ट्रेड सरप्लस मिलिट्री मॉडर्नाइज फंड करता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ाता है। इसलिए इंडिया और अदर कंट्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। कैसे, देखो मिलिट्री हेल्प करती है। मिलिट्री स्ट्रेंथ का रोल है बॉर्डर सिक्योरिटी, मेरीटाइम सेफ्टी, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का मतलब है दूसरे कंट्री सच या फिर मैं कहूँ सोच समझ के मूव करे, राइट। अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन प्रोवोकिंग इट। दूसरा चीज अगर मैं आपको बताऊं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। देखो यहाँ पे आप देखो, वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वेज है चाइना को काउंटर करने का, अगर हम अपने स्ट्रेंथन अप कर दें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को, डेटरेंस को।
अगर मॉडर्नाइज किया जाए आर्म फोर्सेस को, आज के टाइम पे सिर्फ सोल्जर्स काफ़ी नहीं है, मॉडर्न वॉरफेयर्स भी चाहिए। एआई सर्विलेंस, साइबर वॉरफेयर, स्पेस डिफेंस, ड्रोन्स एंड अनमैन सिस्टम। इंडिया का फोकस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस है, नॉट मैन पावर बेस्ड, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, मेरिटाइम सिक्योरिटी। चाइना साउथ चाइना सी में एसर्टिव है, इसका काउंटर कैसे किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग नेवी, जॉइंट मेरिटाइम पेट्रोल्स, फ्री इंडो पैसिफिक विजन। सी रूट्स कंट्रोल करना मतलब ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल करना। नेक्स्ट है आपका डिफेंस इंडिजेनाइजेशन, या फिर अगर मैं आपको बताऊं आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना बहुत जरूरी है, इसलिए इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी है एक तरीके से, राइट। आपकी जो नेक्स्ट लीड है दैट इज बेस्ड ऑन ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अलायंस। आप यहाँ देखिए, देखो चाइना को अकेले कोई कंट्री काउंटर नहीं कर सकती, इसलिए अलायंसेस जरूरी हैं। इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ काम करता है, डेमोक्रेसी बेस्ड पार्टनरशिप बिल्ड करता है। सबसे पहले ऐसी ग्रुपिंग है हमारे पास क्वाड। देखो क्वाड में जिसमें 4 मेंबर्स है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कॉमन पॉइंट्स क्या है इन चारों में, डेमोक्रेटिक नेशंस है, फ्री ट्रेड, फ्री मेरीटाइम ट्रेड करते हैं, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को बेसिकली अवेल करना चाहते हैं। क्वाड डायरेक्टली चाइना को टारगेट नहीं करता, लेकिन रूल बेस्ड ऑर्डर सपोर्ट करता है। दूसरा ग्रुपिंग है I2U2। I2U2 में हमारे कौन से मेंबर्स है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। फोकस एरियाज कौन से हैं, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, इनोवेशन, एनर्जी। ये अलायंस इंडिया की ग्लोबल इमेज स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज IMEC, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना का बॉर्डर रोड जो वो है BRI है, उसको इन्फ्लुएंस बेसिकली एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग टूल है, राइट। अगर हम बात करें इस चीज़ की, IMEC की, IMEC हमारा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर है, राइट। ये प्रोवाइड करता है सिक्योर ट्रेड रूट्स, चाइना डिपेंडेंसी से कम होती है। ये फंड किया गया है G7 नेशन से, सो ये एक स्ट्रैटेजिक काउंटर इनिशिएटिव हो सकता है। अदर देन दैट वी हैव INSTC एंड चाबहार पोर्ट। अगर मैं आपको बात बताऊं INSTC की, विच इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया, ईरान, रशिया कनेक्टिविटी, 7200 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें, ग्वादर के सामने स्ट्रैटेजिक आंसर है, अरेबियन सी की मॉनिटरिंग हो पाएगी, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है इनका, देखो यहाँ पे आप देखिए, इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का रिस्पॉन्स में इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी आया। फोकस, फ्रेंडली पोर्ट्स, नेवल प्रेजेंस, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। एम क्या है, बैलेंस ऑफ पावर, डोमिनेशन नहीं, राइट। तीसरी जो लीड है हमारे पास दैट इज, यहाँ पे देखिए, स्टार्टअप्स। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, चाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी प्लस स्टार्टअप है। गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वेस्ट करती है AI में, ऑटोमेशन में, हेल्थ केयर में, हार्डवेयर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। शेंजन जैसे हब्स ने यूनिकॉर्न फैक्ट्रीज बना दी है, राइट। अगर डोमेस्टिक फोकस की इनकी बात की जाए, पहले चाइना का स्टार्टअप इकोसिस्टम डोमेस्टिक था क्योंकि ग्रेट फायरवॉल, रेगुलेटरी कंट्रोल, लेकिन अब चाइना ग्लोबल मार्केट में एंटर कर रहा है, इससे चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे डीप सीक, हेल्थ केयर एंड सेमीकंडक्टर्स, एग्जांपल्स देखिए आप, डीप सीक AI चिप रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी स्ट्रांग है। एकासो कैंसर ड्रग ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है। हुआई प्लस SMIC सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंस, ये शो करता है चाइना रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी इनोवेट कर रहा है, राइट। अब देखो वर्ल्ड कैसे काउंटर कर सकती है चाइना को विया स्टार्टअप्स। आप यहाँ देखिए, देखो चाइना को डायरेक्टली अपोज करना सॉल्यूशन नहीं है, बेस्ट सॉल्यूशन है आउट इनोवेट चाइना। स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओपन मार्केट्स लाई जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो, ग्लोबल स्केल इनोवेशन लाई जाए। टेक्नोलॉजी लीडरशिप ही फ्यूचर लीडरशिप है। सो गाइस, इस अब जो है देखो कंक्लूड करते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए मिलिट्री डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग अलायंस, इंडिजीनियस स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। सिंगल अप्रोच काम नहीं करेगी, बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ही सोल्यूशन है, राइट। देखो, reducing China's influence is not about confrontation, but about creating strategic balance through strength, partnership, and innovation. So, guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel, SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.